नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे इंटरव्यू सीरीज में और स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो आज आ चुके हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर आकाश तिवारी, मेरे बहुत ही खास एक जूनियर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इटसेल्फ। एंड बहुत सारे घटनाएं के बारे में हम जानेंगे, बहुत सारे रियलिटी एक्सपोज करेंगे आज हम इस छोटे से सेशन के थ्रू। तो definitely if you are new to this particular channel, don't forget to hit the subscribe button and give a like for Akash, who has been department placement coordinator, not a department, it's an institute placement coordinator of IIT Bombay. So nobody, I think, is the better person to talk with regarding the actual placement scenario. And especially he is also from civil engineering background, तो वो हमारे दर्द को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंड एक्चुअली जो कहानी है उन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। और बहुत सारे मतलब चीजें जो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी पता नहीं था वो पता चला उनसे। तो सारे चीजें बात करेंगे सारी चीजों के बारे में, बट बिफोर दैट डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम आकाश टू माय चैनल। Thank you, Anirudh. Thank you so much for having me in your channel. तो आकाश कितना मतलब सभी लोग को जो मैं देखता हूँ सर, कुछ लोग होते हैं कि सर कोर कंपनीज को छोड़ के सब नॉन कोर की तरफ भाग जाते। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ एक्चुअली। बट यू आर सच अ पर्सन जिन्होंने नॉन कोर जॉब मिलने के बाद वो छोड़ के कोर में वापस आए। What were the actual reasons behind it? The nation wants to know. So I will tell you, like, the actual reason behind is the interest. पहले तो इंटरेस्ट सबसे मेन था कि मुझे हमेशा से ये था कि कोर कंपनी में ही काम करना है। थोड़े ऊंची आवाज में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आवाज साफ आ रही है? जी 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 बिल्कुल। हाँ, so the main reason behind this was my interest only to work in the core field. एंड क्योंकि स्टार्टिंग में कैंपस प्लेसमेंट में वो चीज़ नहीं मिली थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो आल्सो, तो थोड़ा सा स्ट्रगल था, तो मैंने नॉन कोर जॉब स्टार्ट करी। बट इन द इनिशियल 3 to 4 months itself I thought कि मतलब I'll not be able to continue it for long time, so I started searching for core jobs. तो एक सबसे बड़ा रीजन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था एंड आई फील कि सबको ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दे करके पर्सनल इंटरेस्ट को जानिए और फिर उसके बाद आगे का सोचिए। बहुत बढ़िया मैसेज दिया आकाश ने। तो सब लोग जो आप लोग जो मेरे व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, जो ये सिर्फ पैकेज के पीछे भागते रहते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मिसाल है ये कि भाई सोचो, उसके बाद डिसीजन लो। और जहां रही पैकेज के बाद will you please decide the मतलब will you please share with us the story actually regarding the package जो मुझे आप बताए थे, जो एक लोचा एक्चुअली हुआ था। So the package story was कि when I got selected, so they offered me some package over there, but at the end of the day, the final offer letter which has to be released from company's end, तो वो head HR को उसमें signature करने होते हैं। And when they got to know that the students which they are hiring for their company do not have a computer science background, so he got a bit hesitant about it कि नहीं, हमको computer science background वाले students ही चाहिए। So which is why they said कि नहीं, हम recruit नहीं कर सकते इनको। And this information, just because I was there in the placement team also, so I got to know, पहले ही मुझे पता चला। So I contacted the right person who was handling this company, and this issue was raised to placement managers also. So उन्होंने जो पैकेज दिया था उससे 30% कम करके वो हमको दे रहे थे at the end of, मतलब this thing got, I mean, for 2 weeks or 3 weeks we continued this thing, and the discussions between the companies and the institute placement team was continued, and after a while it was sorted out that okay, we are going to hire the students, but at a package of 30% less than what they assured us of giving. So the viewers and subscribers, it's a very very important message, and it's an eye opener for all of you people. So if it is happening in such a premier institute like IIT Bombay, so it can happen anywhere also else.
मुझे जो लगता है आकाश कि बाकी कई सारे इंस्टीट्यूट में भी ये होता बिल्कुल। होगा जो कि नॉन सीएससी हम्म। बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, मतलब उनके साथ ये खिलवाड़ बेसिकली हो रहा होगा। तो आप प्लीज सोच समझ के सारे चीजें डिसीजन लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमको मिला, एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक एनीवन in YouTube channel has broken this out and exposed this particular thing. Please do share this information guys with other people so that everyone can make an informed decision. And रही बात, अगर मैं थोड़ा जनरलाइज्ड चीजों के बारे में बात करूं, तो थोड़ा अगर आप प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो लाइक यू हैड बीन एन इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो एमटेक प्लेसमेंट्स के बारे में आपको पूरा आइडिया है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर क्लासेस के, जैसे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के आप उठा लीजिए, 21 पीपल वर देयर इन योर बैच एक्चुअली, तो इनका थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आपको बताए तो। So out of those 21 students, it happened कि only 18 registered. So there is a registration process in the placement thing, and only 18 registered out of it. So it was not the case that each and every person got selected, got placed from the campus itself. And out of 18, 4 students were there who got an off-campus placement, and 14 were there who got in campus placed. So those 4, if I talk about those 4 students who got off campus placement, all of them are working in core field only. And out of those 14 students, 7 students were there who got placed in core company. So 50% of the placement core which happened on campus was core, and 50% was non-core. But if you talk about like all in all, on campus plus off campus, so like the scenario was 11 out of 18 are in core company, and the rest of the 7 are working in non-core. तो बाकी जो 3 लोग, मतलब आप बोले कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए, उनका मतलब क्या कहानी Yeah, थी? so basically, I mean, we were having 2 international students, one अच्छा, from फॉरेन Nepal. कंट्री से भी सर, हमारे जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। फॉरेन जो बाहर के कंट्री से भी कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो हमारे क्लासेस में आते हैं। तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे तो जॉब नहीं करेंगे, वो डिग्री लेके वापस चले जाएंगे अपने देश। हाँ, तो और किसी का शायद ऐसे भी हाँ बोलिए प्लीज। तो मैं वही बता रहा था कि जो आपको मैंने 14 स्टूडेंट्स बताए कि जो प्लेस हुए थे, उनमें से 2 स्टूडेंट्स ये भी है जो कि पीएचडी ऑप्ट करा था उन्होंने। एंड यहाँ पर ये चीज बताना चाहूंगा कि इट वाज नॉट द केस कि उनको प्लेसमेंट मिल नहीं रहा था इस वजह से उन्होंने पीएचडी लिया है। विलिंगली उन्होंने पीएचडी लिया है, क्योंकि आपको पीएचडी का अगर आप प्रोसेस देखो तो जनवरी में स्टार्ट करना होता है, एंड दे विलिंगली टुक पीएचडी। एंड वन ऑफ द and the other 2, I mean, the other 2 students out of those 3 who did not registered, so those people were preparing for government exams, and right now they are doing good also. They have their interviews for the state government exam and they are doing good. ओके। तो ये है टोटल सिनेरियो। और अगर मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बात करूं तो ये भी सर सारे स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट रहता है सबसे ज्यादा कि क्या पैकेज एक्चुअली मिल रहा है। तो नॉन कोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज लगभग कितना गया था? नॉन कोर, yeah, so as I said ki plenty of students got selected in non core also. So the highest package offered was 15 lakhs plus, and the company name was Accenture. So one of the students from our batch got selected over there. But and if you ask about the average non core company package, then I would say it was around 9.5, because some of them got around 8 also, and some of them got around 10 plus also. So it was, I would say 8.5 to 9, you can take it as an average. And for core companies, the average package was 7.5. Achha, can you please name some of the non-core companies except Accenture who had hired? Yeah, so Byju's was one of the company. Then I told you Accenture also. And apart from that, one of the company was related to, I don't remember the exact name, but some was Regent Climate Connect, I guess, because some the work area of the company was in climate science only.
And yeah, so these are the companies which I'm remembering right now. Okay. But I mean, there are many companies which open for environmental science department also for this year, also for my juniors who are getting, I mean, who will pass out this year. So they are also getting placed in many companies. Like Ola came this year. They have offered a package of 15 or 16 something. One of the company from Middle East came, and they have. I mean, in Indian rupees, if you count it, it is around 52 lakhs per annum. So plenty of the companies are coming from non-core sector. तो मतलब एक चीज अगर मैं देखूं तो मतलब जो नॉन कोर टाइप का जो थोड़ा जो ब्रांचेस है, मतलब जैसे कि जिसमें कि लाइक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टाइप ऑफ ब्रांच या फिर लाइक एनर्जी साइंस, अर्थ साइंस, ये सब जो ब्रांचेस है, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑल दिस, इन सब में भी बैठने का मौका मिल रहा है एटलीस्ट, मतलब कंपनी से बैठने का मौका एटलीस्ट मिल रहा है, राइट? मौका मिलता है, बिल्कुल यस, दैट्स अ प्लस, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली मौका आई वुड बिल्कुल से। मिलता है. हाँ, हम्म हम्म. Because और हाँ, there बोलिए are बोलिए। many courses offered inside the institute also, which you can take those courses and study about that particular thing, and that will have an edge in when you are sitting for an interview. That will be an edge for you, that yes, okay, you have taken this XYZ course from the institute and you have studied, let's say, machine learning or artificial intelligence, whatever your interest is. So you take that course and study in the institute also, get a background of it, and then you sit for an interview. So that's an edge for you. तो मतलब एआई, मशीन लर्निंग, ये दोनों जो है एकदम मतलब चाहिए ही चाहिए अभी फॉर द नॉन कोर प्लेसमेंट, जितना मेरे को मतलब समझ में आ रहा मश है अभी। यस, मशीन लर्निंग तो आपको चाहिए ही चाहिए. आप कोई भी प्रोफाइल की अगर बात करो तो आपको मशीन लर्निंग चाहिए ही चाहिए. बट मेरा बस यही बोलना है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं नॉन कोर से कोर में आया था, तो सबको नॉन कोर नहीं जाना होता है, कुछ लोगों को कोर भी जाना होता है. सो द एग्जैक्टली। पॉइंट इज कि आप जो अपना वो बैकग्राउंड स्टडी है ना, किसी भी कंपनी की, जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी, कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा साइंस काम जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की कंपनी में भी तो डेटा होता है ना. तो if you are interested to have a data science wala profile and you don't want to leave your core job, then you can opt for these companies which are having the data of environmental science and using that data science technology and getting the information out of it. So you can definitely go for these companies. So basically the point is you have to do a background study of the company, your interest area, and then go for it. Don't think कि भाई मतलब मतलब कैंपस से सिर्फ प्लेसमेंट नहीं पैकेज होगा देख तो के मत कैसे जाओ, होगा. सिर्फ पैकेज पैकेज देख देख के मत जाइए, क्योंकि मैं पैकेज छोड़ करके कोर कंपनी में आया, क्योंकि आगे चल करके इंटरेस्ट एरिया, उस एरिया में जब आप जान जाओगे चीजों को, जब आप समझोगे, तो आप और भी चीजों को अपनी तरफ से लगा सकते हो इनपुट. वो पैकेज आपका धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा. यस, आई नो कि अभी इस समय मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नॉन कोर की हवा है. वो बहुत ज्यादा पैकेज ऑफर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे लोग जो कि आईआईटी से नहीं हो या कहीं किसी भी कॉलेज से हो, दे आर स्टडीइंग दैट थिंग. तो जो कंपटीशन है, जो कंपनी में लोग ज्यादा मिल रहे हैं, तो पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं वहां पर. जी सो जी। इस वजह से पैकेज नॉन कोर का ऑब्वियसली कोर से ज्यादा है. इफ यू टॉक अबाउट आईटी, इन आईआईटी, इन एनआईटी, तो सब जगह हर जगह पर नॉन कोर का कोर से ज्यादा ही होगा. बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ऐसा नहीं है कि कोर में आपको कुछ मिलेगा नहीं. कोर में बहुत सारी चीजें हैं. वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं, देन ईएसजी हो गया. ईएसजी इज अ बिग थिंग राइट नाउ. एंड फिर उसके बाद आपका सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड चीजें हो गई. लोग इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्टिंग्स वगैरह करते हैं. सो बेसिक थिंग इज कि वो जो सैचुरेटेड फील्ड सब लोग सोचते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज ओनली अबाउट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर कंपनीज, ऐसा नहीं होता है. आप बिग फोर का आप पकड़ लो, केपीएमजी ले लो, ईवाई ले लो, आप कोई भी कंसल्टेंसी फर्म ले लो, कुछ भी ले लो आप, हर जगह पर इस समय पर ईएसजी से रिलेटेड और इन चीजों पर काम हो रहा है. तो थिंक अबाउट इट फर्स्ट. कंसल्टेंसीज में अगर आपको पैसा है तो पैसा भी ज्यादा होता है, अगर आपको पैसे के लिए जाना है तो पैसा भी ज्यादा है वहां पर. So thank you very much, Akash, because I had taken many interviews earlier also for many people, but I think this one will be very special because this is going to be an eye-opening interview for many students actually who had just cracked GATE in 2022. Because the points that Yeah. you have raised
were not raised by anyone earlier. सभी लोग नॉन कोर की तरफ ही मतलब है कि लाइक जा रहे थे। तो आपका जो ये इंटरव्यू, आपका जो सोच है, आपकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो आप शेयर किए हमारे साथ, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आकाश फॉर दिस, एक्चुअली फॉर बीइंग हियर। Most welcome, Anirudh. And Most definitely, welcome. And definitely. at the end, I just want to say, sorry to interrupt you. Just one thing I want to say कि अभी जो भी इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज में, जैसे मैंने आपको बताया, ESG या सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो काम हो रहा है, तो इफ यू रिलेट इट विद स्टॉक मार्केट ऑल्सो ना, तो जब मार्केट नीचे होता है ना, तब पैसा लगाना चाहिए तो प्रॉफिट बनता है। तो आज आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे इन्वायरमेंटल कंपनी में, तो 4-5 साल में एक्सपीरियंस होकर के आपको वो इनपुट भी मिलने वाला है। तो जस्ट थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट, फिर आगे आप बढ़ो, rather than just seeing that वो बड़ा वाला पैकेज, that's it. And I think this is valid for every other branch as well. मतलब जो छोटा मोटा ब्रांच जो हम देखते हैं एक्चुअली, मतलब देखिए अगर इंस्टीट्यूट बढ़िया है तो उसमें प्लेसमेंट तो हो जाएगा, लाइक बिल्कुल बिल्कुल, yeah, that's the point. 100%। और जो 4 लोग कैंपस से नहीं प्लेस हुए थे, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब मिल नहीं रही थी, उनको कोर में ही जाना था, उन्होंने एफर्ट पूरा मारा, उनको अपने पसंद की नहीं मिल रही थी, उन्होंने 2-3 महीने और लगाए, तो बेसिकली उन्होंने 7-8 महीने लगाए हैं। और आपको शॉकिंग लगेगा, एक टाइम पर 4-4 कंपनीज के जॉब थे, 4-4 कंपनीज के। आप मतलब ऐसे लोगों को भी है मेरे सामने जिनका आप मतलब कंपनीज के नाम भी मुझे याद है, कि लोगों का गोदरेज में हो गया, लोगों का WSP में हो गया, लोगों का AE कॉम में अप्लाई करा, AE कॉम में हो गया, वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। तो उनके पास 4-4 कंपनीज के ऑफर थे। सो वो बस उस चीज को स्टिक करे कि नहीं, मुझे काम करना है तो यही करना है, दैट्स इट। या Excellent, excellent. So thank you Akash once again for being here, and definitely guys, please do share this video with all the other people, because this is going to be really an eye-opening interview for everyone. Definitely guys, share this valuable information and drop a like for this guy. Thank you Akash. Thank you Anirudh. Bye, take care.